Hello, good evening, everyone. Hello, yes. Am I audible? So let me check. I think so. Yes. So, good evening, all. Today we are going to learn one class 7 topic, that is $1,000. This is very interesting story which is written by William Sidney Potter. It's a pen name O. Henry. We have been studying बहुत सारे स्टोरीज हम पढ़ते आए हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। ओ हेनरी की स्टोरीज की खासियत क्या होती है? So when we read the story, we think happening something different, but he just turn complete story, give to the story. So एक अलग अंदाज उनके writing style उनकी अलग है. So here one of the best stories written by O. Henry we are going to learn, and the title is $1,000. So today we are going to discuss here $1,000. Okay, as I told you, O. Henry is a pen name of the famous writer O. Henry. $1,000. Why the title is given $1,000? I have been telling you about titles also of the lesson, because the title is the mirror of the entire lesson. Means the title is the central theme of the lesson that we learn. So here $1,000. I don't think that no one here is unaware about dollar. What is dollar? As in India, currency is rupees. So here dollar is a currency. It's a monetary unit, money monetary unit. So let's begin the story. So before starting the story, I will introduce some of the characters from the story. The main important character of this story is young Gillian. Okay, so young Gillian is the main character. His uncle was very rich person, and he died. His name is Septimus Gillian, his uncle Septimus Gillian. एंड वो सेप्टिमस गिलियन चाचा थे, और उनका ये निकम्मा भतीजा यंग गिलियन वो उनका भतीजा था। तो ये दो, एक गिलियन, ये यंग गिलियन ही मेन कैरेक्टर है। उसके अलावा टॉलमन एंड शार्प ये दो लॉयर्स है, जो कि उनके जो चाचा थे उनके वो लॉयर थे। तो उन्होंने ही उनका पूरा जो लास्ट राइट सर्टिफिकेट्स वो उन्होंने उसके पास वो क्लब में जाके बैठता था, और जो यंग वहाँ पे बैठता था उसका दोस्त है ओल्ड ब्राइसन, उसका भी ये स्टोरी में नाम है। एंड द वन मोर लेडी, मिस हेडन और मिस मेरियम हेडन इज वन लेडी, जो एक जो गर्ल है, जो अंकल है, अंकल ने उसको सेप्टिमस गिलियन, जो यंग गिलियन के अंकल थे, उनके दोस्त की वो बेटी थी। और उसके पापा के चल बसने के बाद वो अंकल गिलियन ने उसको संभाला था, उसको अपने घर में रखा था, उसका पूरा वही करते थे। तो इतने कैरेक्टर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। So we'll learn line by line. I'll read and I'll explain the lines. So everybody pay attention to the lines. $1,000 by O. Henry. $1,000, said the lawyer, said the lawyer Tolman, solemnly and seriously. So $1,000, said the lawyer Tolman. As I told you, is a Tolman is a lawyer. Solemnly means seriously. He said seriously and severely, sternly, बहुत कड़क अंदाज में उसने कहा कि $1,000, here and here is the money, और ये रहे आपके पैसे। The lawyer said $1,000 means the lawyer he is giving $1,000 to that nephew, who young Gillian को वो lawyer अभी $1,000 दे रहा है। It's such an unusual amount, Gillian explained genially to the lawyer. Or it's such an unusual amount. What the amount is? It's such a meager amount, young Gillian explained genially to the lawyer. और उसने एक अलग अंदाज से कहा कि ओनली $1,000 यू आर गिविंग मी, लॉयर। तो यहाँ पे जो यंग गिलियन है भतीजा, उसके चाचा ने लॉयर से कहा था कि उसको $1,000 दे दो। तो $1,000 ही इतने कम मनी उसको ऐसा लगा। तो लॉयर क्या कह रहा है देखो,
You heard the reading of your uncle's will. Certainly, lawyer Tolman. Continued the lawyer Tolman. You heard the reading of your uncle थी, जब जो उन्होंने मरते समय कहा था, कि उन्होंने कहा था कि यू विल बी गिवन ओनली $1,000 एंड इट इज रिटर्न इवन. So continued lawyer Tolman, I do not know if you paid much attention to its details. अगर तुमने अच्छे से ध्यान दिया होता कि उनके जो जो मैंने मरते समय उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें पूरा लिखा है, और मैंने पढ़ा भी है मृत्यु पत्र उनका, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि तुमको $1,000 देने हैं. अगर तुमने जब मैं पढ़ रहा था तब ध्यान से सुना होता तो आप मुझको ये दोबारा क्वेश्चन नहीं करते, या तुमको नहीं लगता कि बहुत कम है मनी. You are required to render to us an account of this $1,000 as soon as you have spent it. और वो लॉयर ने कहा कि हम तुमको एक $1,000 दे तो रहे हैं, मगर वो $1,000 का तुम्हें मुझे हिसाब देना पड़ेगा. ओके, रेंडर, यू हैव टू रेंडर अकाउंट, उसका अच्छे से हिसाब किताब, खर्च कहाँ किए, तो उसका पूरा हिसाब किताब की चिट्ठी तुमको मुझे को देनी पड़ेगी. आई ट्रस्ट दैट यू विल ओबे द विशेस ऑफ योर लेट अंकल. और मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है, लॉयर कह रहा है कि तुम तुम्हारे गुजरे हुए चाचा की इच्छा पूरी करोगे और अच्छे से उस पर अमल करोगे. हियर द लॉयर इज स्पीकिंग. हियर the nephew, he said. Young Gillian, he said. You may depend upon it, said the young man politely. I may have to engage a secretary. I was never good at accounts. And young Gillian said, You may depend on, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, said the young Gillian politely. उसने politely कहा. I am have to engage a secretary. I may have अ सेक्रेटरी, एंगेज अ सेक्रेटरी. मुझे तो ये खर्चा पानी रखने, किताब किताब 1,000 का रखने के लिए, डॉलर का, मुझे एक आधा सेक्रेटरी मेरे साथ रखना पड़ेगा जो कि वो पूरा हिसाब किताब लिख सके. वो मौकीली कह रहा है, यानी कि मजाकिया स्वर में उसने कहा. आई वॉज नेवर गुड एट अकाउंट्स, और मैं अकाउंट्स में अच्छा नहीं हूँ, मुझे हिसाब किताब लिखना नहीं आता है, छोटी छोटी बातें मैं लिख के नहीं रख सकता हूँ. सो आई शुड हैव एन अकाउंटेंट और अ सेक्रेटरी हु कैन कीप रिकॉर्ड ऑफ माई एक्सपेंडिचर, $1,000 expenditure. You may depend upon it, said the young man politely. I may have to engage a secretary. I was never good at accounts. Gillian went to his club to meet old Bryson. और यहाँ पे उन्होंने ऐसा लॉयर से कहा और वहां से निकल पड़ा, और वो सीधा गया. Gillian went to his old Bryson. As I told you, Bryson is one character. He's a friend ऑफ यंग गिलियन. यंग गिलियन का एक दोस्त है ओल्ड ब्राइसन, और उससे मिलने वो क्लब में गया, वो $1,000 लेके. सो ओल्ड ब्राइसन, ही वॉज अ काम एंटी सोशल मैन अबाउट 40 years ओल्ड. और ये जो एंटी सोशल, ज्यादा वो किसी के कपड़े में पड़ता नहीं, आप अपना काम देखता है. एंड अबाउट 40 years, और 40 साल का वो नजदीकन होगा. As he was, as he was, he saw Gillian approaching. He sighed, laid down his book and took off his glasses. तो जैसे ही वो ओल्ड ब्राइसन ने देखा कि अभी उसकी तरफ गिलियन आ रहा है, approaching means coming to. He sighed means he just breathe out and laid down his books, और अपने बुक्स उसने बाजू में रखे. And took off his glasses, और अपने ग्लासेस गॉगल्स उसने उतार दिए. Gillian, with my late uncle's lawyers. So he said, I just met to my late uncle's lawyers and they have given something to me. He leaves me an even $1,000. He said, कि $1,000 में कर सकता है क्या कहने लगा lawyer. And they told me that your uncle, he has given you only $1,000, so take these dollars. He narrated entire discussion what he had with the lawyers to the Bryson. Now see Bryson, what he suggested him.
ओल्ड ब्राइसन शोड वेरी लिटिल इंटरेस्ट, और जो ओल्ड ब्राइसन है, जो उसका दोस्त है, ही वेरी लिटिल इंटरेस्ट, उसको बहुत ही उसने इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट से उसने बताया, ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया उसने. आई थॉट द लेट सेप्टिमस गिलियन वॉज वर्थ something like half a million. Okay, near about a million means 10 lakh. तो हाफ लाख तो रुपए मुझे लगता है, वो उसने कहा कि ब्राइसन ने कहा कि मुझे लगता है तेरे चाचा के पास मिनिमम 5 लाख डॉलर्स तो होंगे. हाफ 5 लाख डॉलर्स तो उनके पास डेफिनेटली होंगे. तो तेरे लिए खाली $1,000, वो ब्राइसन ने कहा. ही वॉज एग्रीड गिलियन, और ही वॉज एग्रीड गिलियन ने कहा सही है, उनके पास उतने होंगे. And that's where the joke comes in. He has left a lot of his money. And see, this is the joke, that he has given left only $1,000 for his nephew. And he definitely had that much money. He left me only $1,000. And what he did rest money? So he has left a lot of his money to the other things, as you can see here. The money to an organism once unused things, that it is a part of it goes to a man who invents a Bacillus is a small organism. So he has given his much of the money to the person who invented the bacillus, means for invention purpose, for for medical invention. He has donated his much of the money to the scientific invention, and rest to establish a hospital for doing away with it again. And he donated much of his money to establish or to build a new hospital also. So he gave only $1,000 to me, and rest of all the amount he donated to the scientist who invented organism and new medical invention, and even for the hospital. there are no there are one or two small unimportant gifts on the side, and इसके अलावा एक दो लोगों को उन्होंने अनइम्पोर्टेंट गिफ्ट्स दिए हैं. द बटलर मीन्स कुक. यस, कुक, इट्स अ हेड कुक. बटलर मीन्स हेड कुक, जो मास्टर कुक होता है, उनके घर का जो मास्टर कुक है, उसको उन्होंने क्या दिया. एंड अ हाउस कीपर. बटलर एंड हाउस कीपर बोथ दे गॉट सील रिंग, एक अंगूठी, एंड $10 ईच. और उसने, हमारे चाचा ने उनके कुक को और हाउस कीपर को दोनों को भी एक एक अंगूठी और $10 दिए हैं. His nephew gets only, again he is telling, his nephew means the young Gillian, he got only $1,000, और मुझे खाली एक $1,000 ही उन्होंने दिए हैं. Were there any other हमारे अंकल के विल में इसके अलावा कुछ लिखा, जो मृत्यु का पत्र है, तो उन्होंने इन लोग और किसी को शामिल किया है, किसी को कुछ दिया है. तो यंग गिलियन ही सेड देयर इज अ मिस हेडन. तो उसके अलावा उनको भी उसको भी कुछ तो भी दिया है मेरे अंकल ने. माई अंकल वॉज रिस्पॉन्सिबल मीन्स माई अंकल हु टुक केयर व्हेन ही वॉज अलाइव. उन्होंने उसको संभाला था. नाउ टेल मी व्हाट अ मैन टेल मी व्हाट अ मैन लाइक मी कैन. तो $1,000 से मेरे साथ में क्या कर सकता है वो बताओ, वो पूछने लगा उसके दोस्त ओल्ड ब्राइसन को. सो ओल्ड ब्राइसन, he had the habit of reading. He is a good man and he suggests good. He said, old Bryson rubbed his glasses and smiled. उसने अपने ग्लासेस अच्छे से रब किए, पोंछे, और हल्की स्माइल देते हुए कहा, there are many good things a man could do with $1,000. और उसने कहा कि there are so many good things that a man can do with $1,000. बहुत सारी चीजें $1,000 से की जा सकती है.
एक आदमी कर सकता है, सेड ओल्ड ब्राइसन। बट यू, अब मगर तुम्हारे जैसा निकम्मा, but you can do can buy Miss Lawton Lawrence a diamond necklace with the money and then take yourself off to Idaho to a sheep ranch। और उसने कहा कि तुम क्या कर सकते हो, एक अच्छा आदमी $1000 से बहुत कुछ कर सकता है, मगर तुम क्या कर सकते हो, तो तुम एक मिस लॉटेल, ये जो थिएटर में काम करने वाली एक्ट्रेस होती है, जो उसे पसंद होती है, ये गिलियन को पसंद होती है, और वो कि मिस लॉटल लॉरेंस के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक डाई हो, और इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, आइडाहो, आइडाहो इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट में, एक स्टेट है आइडाहो, एक जगह है, तो वहां पे एक शीप का रेंज, यानी इतने रुपए से उसने ओल्ड ब्राइसन ने कहा। I want to spend the money on one thing because I have to turn in a report for it and I hate itemizing, said Gillian। तो गिलियन ने कहा कि दोस्त, ये ऐसे दो तीन चीजें मत बताओ, मुझे एक ही बताओ कि $1000 एक ही जगह पे स्पेंड करने हैं, क्योंकि ऐसे दो तीन जगह आइटमाइजिंग करूंगा तो मैं याद नहीं रख पाऊंगा कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, एक ही चीज के ऊपर वो पूरे पैसे खर्च करने हैं। बिकॉज आई हैव टू टर्न इट अ रिपोर्ट, तो मुझे उसका एक रिपोर्ट बनाना है फॉर इट, एंड आई हेट आइटमाइजिंग, आइटमाइजिंग यानी बहुत सारे आइटम लिस्ट में लिखना मुझे पसंद नहीं है, सेड गिलियन। So he asked Bryson that give me one suggestion where I can spend $1000 only on one item. Don't give more options. I want only one option. Gillian, so he told him and he left that place. Even he left the Bryson and went away. Gillian took a cab to the Columbine Theater. सो गिलियन, जो यंग गिलियन था, वो भतीजा, उसने वो टैक्सी की, कैब, इट्स अ टैक्सी कैब, किराए की गाड़ी, किराए की गाड़ी से वो कोलंबियन, ये जो कोलंबियन, इट्स अ नेम ऑफ अ थिएटर वेयर द लॉटेल, मिस लॉरा लॉटेल शी परफॉर्म, जो वहाँ पे परफॉर्म करती थी, वो थिएटर का नाम है। वेयर मिस लॉटा लॉरेंस शी इज शी वॉज परफॉर्मिंग, और वहाँ पे कोलंबियन थिएटर में वो गया लॉटा लॉरेंस से मिलने के लिए। सो ही हैड वन गिफ्ट फॉर लॉटा लॉरेंस, उससे बात करने गया। गिलियन ऑफर्ड टू बाय हर अ पेंडेंट वर्थ $1000 बट शी पेड लिटिल अटेंशन। वो लॉटा लॉरेंस के पास गया और उससे कहा कि तुम्हें एक $1000 का पेंडेंट, इट्स अ पेंडेंट, यू नो, इट्स एन ऑर्नामेंट, एक ऑर्नामेंट का नाम है, जो पेंडेंट मैं तुमको देना तक कहा लॉटा लॉरेंस से, बट लॉटा लॉरेंस पेड लिटिल अटेंशन, उसने उसकी तरफ, ये गिलियन के, शी एडेड दैट, और उसने कहा कि अ नेकलेस एट इज कॉस्ट मच मोर, जो स्टेफनी जो है, टिफनी जो है, ये एक पर्सन का नाम है ये भी, और उसने कहा कि ये टिफेनीज तो तुझसे महंगा नेकलेस वो मुझे दे रहा है, तो व्हाई आई शुड पे अटेंशन, मैं तुझको ज्यादा ध्यान नहीं दूंगी, इज गिविंग मी मोर valuable ornament than you, so you can go from here, she indirectly told him, not very impressed with her response, and गिलियन का वहां पे दिल टूट गया, वो नहीं मानी, और took the cab again। so गिलियन ने वहां से भी departed means left the place, उसने वो प्लेस छोड़ा, and caught the cab again, उसने वो किराए की गाड़ी में and he said to the driver down Broadway। Gillian got out of a cab, और 8 blocks down ब्रॉडवे में वो इट्स अ प्लेस नेम, कैब, और वो कैब से उतर गया, और वहां पे उसने देखा कि देयर ही आस अ ब्लाइंड पेंसिल डीलर, वहां पे पेंसिल बेचने वाला इंसान उसको मिला था, जो कि, और उसने कहा कि व्हाट यू वुड डू इफ यू हैड $1000, सेम क्वेश्चन ही आस्क्ड टू द ब्लाइंड, द पेंसिल सेलर। सो व्हाट यू वुड डू, आप क्या करोगे अगर आपके पास $1000 होंगे, तो द डीलर showed him his bank
डिपॉजिट बुक। तो ये डीलर था, वो अंधा पेंसिल बेचने वाला, उसने झट से अपना बैंक का पासबुक निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। इट शोड अ बैलेंस ऑफ $1785, और उसमें लिखा था उसके डॉग उसका डिपॉजिट उसमें उससे ज्यादा, यानी कि गिलियन के पास $1000 ही थे, मगर वो अंधे पेंसिल बेचने वाले के पास $1785 उसके पास, मीन्स मोर देन हिम, नियर अबाउट उससे $785 उसके पास ज्यादा थे। सो इट वॉज द बिग इंसल्ट ऑफ गिलियन। गिलियन की बहुत बड़ी इंसल्ट यहाँ पे हमें दिखाई देने को मिलती है। Gillian took the cab to the law offices of Tolman and Sharp। और उसके बाद वो वह पेंसिल सेलर को उसका उसका बुक दे दिया उसने, और उसको एहसास हो गया कि हाउ मच पुअर एम आई, द पेंसिल सेलर ही इज मोर रिच देन मी। एहसास हुआ और वो झट से फिर से वो अपने जो लॉयर्स थे उसके अंकल के लॉयर्स, टॉलमन एंड शार्प, उस उनके पास लॉ ऑफिसेस में वहां पे थे और उसके उनके पास हो गया। लॉयर टॉलमन लुक्ड एट गिलियन इन हॉस्टाइल एंड क्वेश्चन। तो हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली, ओके। तो जब ये टॉलमन ने ये गिलियन को आते देखा, तो टॉलमन और शार्प ये दोनों लॉयर्स को पता था कि ये निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता और ये बार बार हमारी तरफ आया है। तो उनके माथे पे अभी क्वेश्चन मार्क हो गया कि उनको लगा कि ये क्या बाद में आ गया है फिर से, उनको टेंशन आ गई। So they looked at him in a hostile, unfriendly look and questioning him। अब ये क्या क्वेश्चन करेगा ऐसा उनको लगा। I beg your pardon, मैं माफी चाहता हूँ, said Gillian cheerfully, but was Miss Hayden left anything by my uncle's will in addition to the ring and the $10? He asked the question to the lawyer। मुझे माफ कीजिए और मुझे इतना बताइए कि बट वॉज मिस हेडन लेफ्ट एनीथिंग बाय माई अंकल्स विल, मेरे अंकल के जो मृत्यु पत्र में वो मिस हेडन के लिए कुछ और लिखा है या फिर ओनली वन रिंग एंड $10? ही आज द क्वेश्चन। नथिंग सेड मिस्टर टॉलमन। तो टॉलमन ने कहा कि नहीं, उतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इतना ही उन्होंने कहा। सो गिलियन विजिट his late uncle's house where she was writing letters in the library। और फिर से उसने गाड़ी पकड़ी और वो गया अभी, वो गिलियन विजिटेड मिस हेडन। मिस हेडन जो लड़की, उसके पास वो गया, लेट अंकल्स हाउस, वो जो उसके उसके ये चाचा के घर में वो रहती थी वो लड़की, वेयर शी वॉज राइटिंग लेटर्स, जहाँ पे वो लाइब्रेरी लिख रही थी। शी वॉज स्मॉल एंड स्लेंडर एंड, और वो कैसी थी, छोटी थी, स्मॉल, स्लेंडर यानी दुबली पतली, एंड क्लोथ इन ब्लैक, उसने काले रंग के कपड़े पहने थे। आई हैव जस्ट कम फ्रॉम ओल्ड टॉलमन्स, ही सेड, उसने कहा, ही एक्सप्लेन्ड। ही लाइड एंड सेड, उसने झूठ बोलते हुए कहा। ये जो गिलियन है, यंग गिलियन, वो भतीजा, वो झूठ बोलते हुए वो कहने लगा हेडन से कि आई हैव जस्ट कम फ्रॉम ओल्ड टॉलमन्स, मैं अभी ये ओल्ड टॉलमन्स जो जो वकील, जो लॉयर है, उसके यहाँ से मैं आया हूँ। ही एक्सप्लेन एंड ही लाइड एंड सेड, उसने झूठ कहते हुए कहा। देयर पत्र में एक विल हाउर थी। इट सीम्स गर्ल हैड सेकंड थॉट्स $1000, और मेरे चाचा ने आपके लिए $1000 रखे थे। सो टॉलमन आस्क्ड मी टू ब्रिंग द मनी, और टॉलमन जो लॉयर है उसने कहा कि ये पैसे आपको देकर आओ। टर्न वाइट। तो उसने जो खुद के लिए जो $1000 जो लॉयर ने उसको दिए थे, वो गया वो लड़की के पास, हेडन के पास, और उससे कहा कि मेरे चाचा के जो लास्ट राइट में जो लेटर उन्होंने लिखा और लॉयर के साथ, तो जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें एक चीज मिस हुई है आपके लिए। ओनली $10 तो है, वो $10 और रिंग तो है, उसके अलावा $1000 भी। उसने झूठ कहते हुए अपने पैसे
उसको दया आई थी वो लड़की के ऊपर, और उसने अपने पैसे वो लड़की को दे दिए, हेडेन को दे दिए। When Hayden Miss Hayden, she got the $1,000. But why? Because she doesn't believe on him. He had already lost everybody's means faith. तो वो पहले से ही सबका विश्वास उसने खो दिया था। जब वो मिस हेडन ने को लगा कि वो मेरे को $1,000 दे रहा है, तो शी वॉज फेंट कंप्लीटली सरप्राइज, शी वॉज सरप्राइज एंड शी टर्न वाइट। देन he handed $1,000 to Hayden and borrowed a pen and paper. उसने उसको कहा कि मुझे प्लीज मुझे एक पेन और पेपर, एंड wrote out an account of his expenditure for $1,000 and returned to the offices of Tolman and Sharp. और उसने क्या किया, वो हेडन के पास से एक चिट्ठी ली, लिफाफा एनवलप लिया, और उसके ऊपर उसने $1,000 कहाँ खर्च किए, आई गेव दिस मनी टू दिस मिस हेडन, ऐसा उसने लिखा होगा उसमें कि कहाँ खर्च किए, एक पुअर गर्ल को मैंने दे दिए, डोनेट कर दिए, उसने वो लिफाफे में लिखा, और लिफाफा बंद करके वो फिर से ही came back to the lawyers. Okay, Tolman and Sharp उनके पास, वो वापस lawyers के पास आ गए। So it was his third visit to the lawyers. लॉयर के पास अभी तीसरी उनकी विजिट थी। I have expended the $1,000 and have come to rendered the account of it. And he said, द गिलियन, यंग गिलियन, वो भतीजा, वो अभी लॉयर के पास आके कहने लगा, आई हैव एक्सपेंडेड, आई मीन्स आई हैव स्पेंट द मनी, द $1,000 एंड हैव कम टू रेंडर द अकाउंट ऑफ इट, और उसका हिसाब किताब में मैं लिख के लाया हूँ। He said cheerily to Tolman. He tossed the envelope on the lawyer's table. और उसने वो जो एनवलप था जिसके अंदर उसने वो लिखी थी चिट्ठी, $1,000 कहाँ स्पेंड किए, वो लिफाफे के अंदर रख दी, लिफाफा बंद कर दिया, उसने टॉस कर दिया, टॉस मीन्स थ्रो, टू द लॉयर्स टेबल, लॉयर्स के टेबल पे उसने वो रख दिया। तो व्हाट हैपेंड सी, देन मिस्टर टॉलमन कॉल्ड हिज पार्टनर शार्प। तो जैसे ही उसने वो लिफाफा और खर्चा का पूरा हिसाब किताब का एक लिफाफा उसने लाया, तो मिस्टर टॉलमन कॉल्ड हिज पार्टनर शार्प। दो वकील थे, टॉलमन एंड शार्प, तो दोनों पार्टनर एक जगह पे उसने बुलाया, टॉलमन ने अपने पार्टनर शार्प को बुलाया। दे सर्च फॉर समथिंग इन अ लार्ज सेफ, और वो दोनों ने मिलके एक बड़े से लार्ज सेफ, सेफ यानी तिजोरी या फिर बॉक्स, लॉकर, और वो बड़े से लॉकर में कुछ तो भी खोजने लगे। दे ब्रॉट आउट अ बिग सील्ड एनवलप, और उन्होंने भी, वो शार्प और टॉलमन ने भी एक बड़ा सा एनवलप उन्होंने वो सेफ में से, वो तिजोरी में से ढूंढ निकाला, और क्या कहा देखो, मिस्टर टॉलमन रिवील्ड टू गिलियन दैट हियर वाज अ सीक्रेट स्टिपुलेशन इन हिज अंकल्स विल। तो अंकल की विल में, इच्छा पत्र में अंकल के, उसने कहा कि एक स्टिपुलेशन है, एक स्टिपुलेशन है, एक स्पेसिफिकेशन या फिर एक कंडीशन, और एक कंडीशन थी जो रिवील्ड, रिवील्ड मीन्स उजागर करना यानी बाहर निकालना, टर्न आउट। सो टॉलमन एंड शार्प ये दोनों कहने लगे कि हमारे पास एक चीज और है आपके अंकल ने, अंकल के मृत्यु पत्र में लिखी वाली, जो हम अभी रिवील करना चाहते हैं। ही स्टेटेड, द लॉयर ही स्टेटेड, if you have spent his inheritance in a sensible, wise, or unselfish way, it is in our power to give you bonds to the value of $50,000। तो तुम्हारे अंकल ने ऐसा लिखा था, हमें ऐसा बताया था कि जब तुम वो $1,000 का हिसाब जो तुमने अच्छे काम के लिए अगर खर्च किए होंगे, या फिर किसी को हेल्प की होगी, ऐसे अगर आपने $1,000 खर्च किए सेल्फिश वे से नहीं, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि ये एक बंद लिफाफा है, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वो आपको लिए, और फिर मेरे भतीजा अगर अच्छे काम के लिए $1,000 खर्च करता है तो उसको एडिशनली ये फिर $50,000
डॉलर उसको दे दीजिए, उन्होंने ऐसा कहा था। तो आपको हमें समझ में आना चाहिए कि $1000 उसने कहाँ खर्च किए थे, अच्छे के लिए खर्च किए थे या बुरे के लिए खर्च किए थे, उसने वो पैसे से मौज मजा की थी या उसने क्या किया। तो वो उसने वो पैसे $1000 मिस हेडन को, जो हेल्पलेस लेडी जो गर्ल थी, उसको उसने हेल्प की थी, वो अच्छे काम उसने, वो सुधर गया था। तो देखो, अभी अगर वो लॉयर वो लिफाफा खोलते जो कि यहाँ पे गिलियन ने लाया है, और वो लिफाफे में लिखा था उसने कि उसको डेफिनेटली वो $50,000 जो है वो मिल जाते। बट इफ यू हैव यूज दिस मनी इन अ वेस्टफुल फुलिश एज यू हैव इन द पास्ट, द $50,000 is to be paid to Miss Mariam, वार्ड ऑफ द लेट मिस्टर गिलियन विदाउट डिले। देखो, तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये $1000 जैसे तुम पहले खर्च करते आते थे, हमारे अंकल तुमको पैसे देते थे और तुम उड़ा देते थे जुए में इधर उधर, मगर अगर वैसे ही अगर तुमने ये भी ₹1000 $1000 अगर तुमने खर्च कर दिए, तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, और ये सीधा सीधा $50,000 हम किसी को देंगे, द सेम लेडी, मरियम हेडन, मरियम हेडन को हम दे देंगे। पहले से ही $1000 उसी को दे के आया था मदद के लिए, और उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये 1000 अच्छे से सेंसिबली खर्च नहीं किए, तो वो हम उसको दे देंगे, और अगर अच्छे से खर्च किए तो हम ये तुमको दे देंगे। हमें पता है कि उसने अच्छे खर्च किए थे, तो डेफिनेटली उसे मिलना चाहिए। मगर क्या हुआ देखो, जो वार्ड थी मिस्टर गिलियन की, विदाउट डिले, कोई भी डिले ना होते हुए हम उसको 50 दे देंगे, अगर तुमने अच्छे खर्च नहीं किए तो। नाउ मिस्टर शार्प एंड आई विल एग्जामिन योर रिपोर्ट ऑफ द $1000। तो हम अभी दोनों लॉयर, तुमने वो पैसे कैसे खर्च किए हैं $1000, तो गिव यूर दैट एनवलप। वो अभी लिफाफा उठाने ही वाले थे, जो यहाँ पे गिलियन ने उनके टेबल पे रखा था। तो मिस्टर टॉलमन रीच फॉर द एनवलप। जैसे ही मिस्टर टॉलमन जो लॉयर वो लिफाफा उठाने वाले थे, जो लिफाफा किसने रखा था, ये गिलियन ने रखा था, उस उनसे पहले, बट गिलियन स्नैच्ड इट बैक एंड शेडेड इट। बट गिलियन ने, यंग गिलियन जो निकम्मा भतीजा था, उसने लॉयर से उठाने से पहले उसने उठा लिया, और उसको श्रेडेड, श्रेडेड मीन्स टॉर पीसेस, उसको बहुत से टुकड़ों में काट दिया। एंड सेड, एंड ही claimed he lost the $1000 on the races, और उसने कहा same way I spent the money on the races, वो $1000 रेस में उड़ा दिए, एंड वॉकड आउट ऑफ द ऑफिस विस्लिंग अ हैप्पी ट्यून, और वहां से खुशी से सीटी बजाते हुए वो दोनों लॉयर के ऑफिस से निकल पड़ा। तो देखो दोस्तों कि हियर यू कैन फाइंड अ ग्रेट सेक्रीफाइस ऑफ गिलियन। यहाँ पे गिलियन का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस हमें दिखाई देता है कि उसने $1000 देकर अपने चाचा ने जिस लड़की को संभाला था उसकी हेल्प की, मदद की, एंड इवन अगर वो अच्छी के लिए खर्च किए, अगर वो लॉयर को समझ में आता तो वो लॉयर उसको दे देते $50,000, और वो फ्री के पैसे भी नहीं चाहता था, वो काम करना चाहता था, मेहनत करना चाहता था। और वो $50,000 किसको मिल गए, वही लड़की को जिसको वो $1000 दे के आया था। तो मीन्स एट द लास्ट ऑल्सो ही हेल्प्ड दैट गर्ल, उसने आखिरी में भी वो लड़की की हेल्प ही की $50,000 देकर। तो वो completely बदल गया था। So here we understood the variation turn, entire turn in the story, how the story turned by here विलियम सिडनी पॉटर ने कैसे स्टोरी को, ओ हेनरी ने कैसे चेंज किया है, और रीडर को हमारे मन में कैसी उत्सुकता बढ़ाई है, जैसे कि वी बिकम वेरी ईगर टू नो एंड नो what will happen next in the story. So I hope so you understood the story, $1000, right? So $1000, the story we have complete here. The story, it is written by, as
It's a name, real name of O. Henry. It's a O. Henry is a pen name. You can read about the writer. Everything is given here. His period is 1862, 1910. His period. Did you know? Even you can read is a will. Okay, when a person dies, he legally write declare something, that is will letter. It's a will letter or legal declaration of a person's, makes its bounded by laws. लॉ से वो बाउंड होता है, that is legal will letter. There are some questions based on this one, this lesson. The questions are very easy. You can simply read the questions and you can simply solve. Okay, so directly I'll show you the answers of this lesson. As I have simply you read the answers. I'll tell you the, I will show you all the questions and answers. You simply read the answers and design your own answer. Okay, so based on this lesson, some questions are there. I am showing you the questions. Simply glance the questions. Based on the questions, I will find some answers also. So textual exercise here, writing. We have even learned how to write a story. In every story we'll find a climax for rising action, falling action, climax, and lastly resolution. So these are the components of a story that we will find different these components in. So textual answers, first of all I'll show you textual answers. So dear friends, here are the textual answers. Simply you can glance over it in a short glance. You just go through the answers. Simply you can pause the video and you can write the answers. But as I told you, please don't copy the answers as it is. It's just for your reference. You read the answers and try to frame your own answer. Try to write the answers in your own language, in your own sentences. So these are the answers. Textual exercise. So you can take the screenshot of these answers. You can pause the video, take the screenshot, and after that you can prepare yourself. Answer the following questions in 80 to 100 words long answer questions. A, B, and C. Again, D question is also there. So take proper time to read. First of all, read the question, then try to understand what the answer is. Read the answer twice, thrice, then try to write by own. Factual understanding question you can directly write, but open-ended question, it is better you to be prepared by reading these questions, these answers, and then you frame, try to practice writing by own. Okay, that would be helpful you in future also. That would help you to develop or make a kind of standard language. So it's a humble request from my side, everybody. This is the textual exercise of this lesson. Answer the following questions again. Right? Yes. Okay, now worksheet answers. I'll show you worksheet answers. There is a worksheet based on this lesson. Young Gillian's uncle, as I told you, Septimus Gillian is the young Gillian's uncle. They got a usual seal ring and $10 each. Who got? Burnett, so butler, housekeeper, and here the lady also, the girl Hayden. She also got the ring and uh, $10. Here the lawyer
of young Gillian's uncle Toyer, lawyer, Tolman and Sharp, both lawyers. Tolman is the main one. Miss Lotta Lawrence. Lotta Lawrence, she is an actress. The lawyer's partner, Sharp, Tolman and Sharp. Answer the following question, 30 to 40 words. What were the terms of Gillian's uncle's will? 5 lines. What were the terms, conditions? Okay, stipulations. These are the answers. You simply can read and you can prepare. Better to just pause the video, take the screenshot, write it down, practice this, read once or twice. It would be helpful for you. And this student specific, it's open ended. It's the question, it should be written by own. So try to understand this question and you can write by own. So everybody, we have completed this lesson, class 7th lesson, $1,000. If you still find any difficulty in the lesson, you can ask, you can comment. I'll try to help you. I hope so everyone, you understood the lesson, and really thank you very much. If you like the video, you can share with your friend, you can subscribe even. Thanks a lot. Thank you very much.